के अंदर सबसे पहले इन आवर डेली लाइफ many such incidents take place which have more than one result. It is natural that everyone has curiosity to know the result. Persons try to take advantage by anticipating the result of these incidents. The science of knowledge, knowing the result of an incident on the basis of prior information and circumstance called probability. The theory of probability was first propounded the 17th century in the Europe. The gamblers and the match fixers made attempt to know the results their respective games beforehand in order have maximum advantage. The people put this problem before the center pro mathematics like Galileo, Pascal's, Fermat, Cardinal, Itz. These mathematicians developed certain mathematical method to solve this problem, and constitutively this branch of mathematics came to exist. Permanent mathematicians of the 18th and 19th centuries, Laplace, Gauss, Bernoulli, Itz developed this principle further. In the 20th century, sampling theory, decision theory, its based probability theory were developed, and credit of these go to R.S. Fisher and कार्ल पीरसन। अब देखिए प्रिय विद्यार्थियों, इसके अंदर प्रोबेबिलिटी का जब अध्ययन करते हैं तो विशेष रूप से ये सब बताया हुआ है। सम डेफिनेशंस आपको मस्ट बी रिमेंबर। रैंडम एक्सपेरिमेंट, when all the possible results of an experiment are already known and no inference of an particular results it possible, it is called the random experiment. For example, the two results of the tossing of a coin, either head or tail, are already known. No definite results can be forecast. Therefore, टॉस ऑफ द कॉइन इज ए रैंडम एक्सपेरिमेंट। दूसरा है ट्रायल एंड इवेंट, व्हेन आउट ऑफ द मैनी पॉसिबल रिजल्ट्स आउटकम्स ऑफ द रैंडम एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड ऑफ द ट्रायल एंड द पॉसिबल रिजल्ट्स। फॉर एग्जांपल, जैसे बता रहा 2-3 एग्जांपल, टॉसिंग ऑफ ए कॉइन इज ट्रायल एंड गेटिंग हेड एंड टेल। थ्रोविंग डाइस is trial and getting any 1 2 3 5 4 1 2 3 4 5 6 event, getting appearing in the examinations of the candidate is trial, pass or fail is event। अगली डेफिनेशंस हैं हमारे पास। सिंपल इवेंट, when in a trial only on one event टेक्स पैलेस एट ए टाइम इज सिंपल इवेंट्स। ये बता रहा है सिंपल इवेंट्स, यानी हम कोई भी ट्रायल करते हैं तो उसमें एक बार ही कोई आंसर प्राप्त हो जाता है, ये सिंपल इवेंट कहलाता है। जैसे फॉर एग्जांपल, ड्रॉइंग बॉल फ्रॉम ए बैग कंटेन्स फ्यू ब्लैक एंड वाइट बॉल्स इज सिंपल इवेंट। एक्सेक्यूटिव इवेंट्स एंड टोटल नंबर ऑफ केसेज, ऑल द पॉसिबल रिजल्ट्स ऑफ द trials are called exhaustive events or total number of cases of the trial.
फॉर एग्जांपल ले सकते हैं, टॉसिंग ए कॉइन ट्रायल एंड हेड एंड टेल कैन occur in the trial in executive events are 2. On throwing of dice 1, 2, 3, 4, 5, 6 can occur in this trial executive events are 6. अब अगले में बता रहा है पॉइंट्स में कि फेवरेबल इवेंट केस, फेवरेबल द नंबर ऑफ केसेस द फेवरेबल to a particular event in a trial is the number of the outcomes which entail the happening in the particular event. For example, in throwing a dice, the number cases the favorable to getting in event 2, 4, 6, यानी इवन नंबर का कह रहा है तो 2, 4, 6 तो यानी टोटल नंबर कितने हो गए, 3 हो गए. On drawing 2 cards from pack of card number of cases the favorable to getting king is 6 टाइम हो गया. In throwing of a 2 dice the number of cases the favorable getting sum of 5, 1 4 हो सकता है, 4 1 हो सकता है, 2 3 हो सकता है, 3 2 हो सकता है, इट्स इस प्रकार इसके टोटल नंबर 4 हो गए. तो इसकी अगर प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है तो 4/36 हो जाएगी. 36 इसके टोटल इवेंट है और जो हमको फाइंड करना है वो 4 ही है. इस प्रकार से फिर आता है इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट इवेंट्स. इंडिपेंडेंट इवेंट्स 2 or more events are called independent events in the happening or not happening of any one does not dependent on the happening is non happening of the other. For the example, on tossing a coin and throwing a dice, the outcomes getting head on coin and 4 dice in the independent event. Dependent 2 or more events are called dependent event of the happening of any one does dependent on the happening of the other. Example, a card drawn from an ordinary pack of cards should be a head card. After that, without replacing in the pack again drawn the card that should be spade card. Both are the dependent event. अगला डेफिनेशंस हैं हमारे, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और डिसजॉइंट इवेंट. 2 or more events are said to be mutually exclusive or disjoint event. It no two more occur simultaneously of the same trial if the occurrence of any one of them prevent of the occurrence of other. Example, on tossing of a coin, occurring of the head and tail are naturally the exclusive events. A card is drawn from a pack card, it being a king or a queen are mutually exclusive events. अब देखिए, equally likely events. If any experiment possibility happening events its same, then such events are called equally likely events. For example, likely events. In tossing coins, getting head and tail equally. In drawing card from pack card, it will be red and black card is equally likely events. अगला आता है compound events. If 2 more events happen at a time, are called the compound events and joint event. For example, in 2 bags there are some blue and some red balls. Selection of the bag and then drawing a ball from is the compound event because selection of the bag from 2 bags and then ball is drawn from selected bag is happening a time. अब देखिए, हम बता रहे हैं अगला में कि सैम्पल पॉइंट ऑफ द सैम्पल स्पेस, द सैम्पल पॉइंट्स ऑफ द टॉसिंग फॉर 2 कॉइन्स. तो इसकी टोटल स्थितियाँ बन जाएगी एच एच यानी हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल. इस प्रकार इसकी कुल स्थितियाँ 4 आ जाएगी, 4 आ जाएगी. ये इसकी स्थितियाँ बन सकती हैं.
2 चिल्ड्रन आर सेलेक्शन फ्रॉम 3 बॉयज़ एंड 2 गर्ल्स, तब हम बॉयज़ को B1 B2 B3 दे देंगे, गर्ल्स को G1 G2 दे देंगे। इस प्रकार इसकी कुल स्थितियाँ ये पे बन जाएगी, यानी B1 B2 हो सकती है, B2 B3 हो सकती है, B3 B1 हो सकती है, B1 G1 हो सकती है। इस प्रकार इसकी टोटल स्थितियाँ बन जाएगी। अब देखिए, इसी प्रकार अगर मैथमेटिकल डेफिनेशंस में आप प्रोबेबिलिटी बताएंगे तो इसकी हो जाएगी, इफ़ द रिजल्ट्स ऑफ द ट्रायल एन आर एन इक्वली लाइकली म्यूचुअली exclude in the executive cases of M, the favorable of the happening an event A and the probability of A dependent the M बटा N, यानी डिनोटेड प्रोबेबिलिटी को व्यक्त करने के लिए हम पी ए बराबर लिखेंगे और यहाँ पे लिखेंगे फेवरेबल केसेस ऑफ ए अपॉन में टोटल नंबर्स, यानी M अपॉन N आ जाएगा। अर्थात फिर कह रहा है इफ़ इन ए ट्रायल हैपनिंग इवेंट ए इज श्योर, अगर M इक्वल टू N है तो हमारी इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। इफ़ हैपनिंग इवेंट ए इज इम्पॉसिबल घटना होती है तो M इक्वल टू 0 हो जाएगी, अर्थात प्रोबेबिलिटी 0 हो जाएगी। प्रोबेबिलिटी की जो वैल्यू देयर फॉर ऑफ एनी इवेंट प्रोबेबिलिटी इज 0, इक्वल, ग्रेटर देन भी हो सकती है, 0 के बराबर भी हो सकती है और 0 से बड़ी भी हो सकती है, और 1 से 1 के बराबर भी हो सकती है और 1 से छोटी भी हो सकती है। ये आपको 2 चीज़ें ध्यान रखनी है। प्रोबेबिलिटी की जो वैल्यू होगी वह हमेशा 0 और 1 के बीच में भी होगी, और 0 की बड़ी हो सकती है और 1 से छोटी हो सकती है, ये ध्यान रखना है। यानी 0 से बड़ी और 1 से छोटी, यानी प्रोबेबिलिटी की जो वैल्यू आएगी, यानी पी ए बराबर इसमें न्यूमिनेटर होगा वो हमेशा स्मॉल होगा और डिनोमिनेटर होगा वो हमेशा बिग होगा, यानी बड़ा होगा, इस लार्ज नंबर होगा। अर्थात इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट कैन नॉट बी लेस देन 0 एंड ग्रेटर देन 1 एंड लिमिट ऑफ प्रोबेबिलिटी इज फ्रॉम 0 to 1, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन हैपनिंग इवेंट्स इसको पी ए बार लिखा जाता है, यानी पी ए बार बराबर अनफेवरेबल केसेज ऑफ इवेंट ए अपॉन टोटल नंबर्स। अर्थात पी ए जब बार निकालना है आपको तो आप लिखेंगे 1 माइनस पी ए, यानी ये फेवरेबल प्रोबेबिलिटी होगी और ये नॉन फेवरेबल होगी। पी ए प्रोबेबिलिटी हैपनिंग एन इवेंट ए और पी ए बार प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन हैपनिंग इवेंट ए, यानी इसको पी ए बार से लिखेंगे। इस प्रकार हम कुछ प्रश्न लेते हैं। उदाहरण देखिए, पहला है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इन थ्रोइंग ए डाइस। तो आपको इसमें से सबसे पहले गिवन बाय लिख देना है कि सबसे पहले तो यहाँ पे एक डाइस है, जैसे डाइस, अब डाइस में टोटल नंबर कितने होते हैं, टोटल नंबर लिख दीजिए, यानी 1 2 6 होते हैं, यानी टोटल नंबर कितने हो गए 6। अब किसकी पूछ रहा है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इन थ्रोइंग एन ए डाइस ऑफ इवन नंबर की पूछ रहा है। किसकी पूछ रहा है, इवन नंबर की। ये ध्यान देना, प्रश्न थोड़ा गलत लिखा हुआ है, इवन नंबर की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है, तो इवन नंबर फाइंड कर दीजिए। तो इवन नंबर हो गए 2 4 6, इन कुल इवेंट कितने हो गए हमारे पास में 3, तो अर्थात रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 3/6, यानी 1/2 आंसर आ जाएगा। इसी प्रकार से एक और प्रश्न है, इन ए सिंगल थ्रो ऑफ 2 डाइस डिटरमाइन प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए टोटल ऑफ 7। अब देखिए, ऑन थ्रोइंग 2 डाइस जब हो गए तो इसकी 6 × 6 यानी 36 टोटल प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, यानी टोटल नंबर इसके 36। अब सो एग्जीक्यूट केसेस रिक्वायर्ड इवेंट 36 हो गए। द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ द पॉसिबल ऑफ सम ऑफ 7। अब सम ऑफ 7 का निकालने के लिए 1 6 हो सकता है, 2 5 हो सकता है, 3 4 हो सकता है, 4 3 हो सकता है और 5 2 हो सकता है और 6 1 हो सकता है। इस प्रकार से इसके टोटल इवेंट कितने हो गए, 6 इवेंट हो जाएंगे, यानी जिसका रिक्वायर्ड इवेंट है वो 6 होगा। अर्थात रिक्वायर्ड इसकी प्रोबेबिलिटी होगी वह हो जाएगी 6/36, यानी 1/6। इस प्रकार हम एक और प्रश्न लेते हैं।
और देखते हैं फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ए लीप ईयर selected random will contain 53 Mondays. We know that in leap year there are 360 days. So 52 complex week and 2 days are remaining. The 7 possibilities of the 2 days. संडे मंडे हो सकता है, मंडे ट्यूसडे हो सकता है, ट्यूसडे वेडनेसडे हो सकता है। इसी प्रकार आगे देखेंगे तो वेडनेसडे थर्सडे हो सकता है, थर्सडे फ्राइडे, फ्राइडे सैटरडे और सैटरडे और संडे हो सकता है। अब आपको किसका पूछा? मंडे का पूछा है। तो देखिए इसमें मंडे कितनी दिन आ रहा है? मंडे एक तो यहाँ आ रहा है और एक वापस अगले में भी आ रहा है, 2 बार आ रहा है। तो अर्थात सो एग्जीक्यूटिव केसेज ऑफ द रिक्वायर्ड इवेंट तो हो गए 7 एंड आउट ऑफ 7 पॉसिबल केसेज इन 2 केसेज मंडे ऑक्योर्स ऑफ द फेवरेबल केसेज हो गए 2, तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 2/7। इस प्रकार से इसकी प्रोबेबिलिटी निकल जाती हैं। देखिए प्रिय विद्यार्थियों, इसके अंदर एक कार्ड्स में नहीं बताया हुआ है, जो मैं कार्ड्स का बता देता हूँ। देखिए कार्ड्स के अंदर आपके सबसे पहले एक तो होता है डायमंड, जिसका कलर होता है रेड। ये इस प्रकार का डायमंड होता है और इसका कलर ध्यान रखना आपको रेड होता है, जिसके अंदर एक किंग होता है, एक क्वीन होती है, एक जैक होता है और एक एस होता है। ठीक है, तो और 9 कार्ड्स और होते हैं जिसमें 2 से 10 तक टेबल लिखी हुई होती है। ये इस प्रकार से डायमंड के 13 कार्ड्स होते हैं। दूसरा हमारे पास में डायमंड के बाद में होता है एक हर्ट्स होता है, यानी हर्ट्स होता है, जिसको हम इस प्रकार से बता सकते हैं। ये हर्ट्स होता है, इसका भी कलर रेड होता है और इसमें भी वो होते हैं जो डायमंड में होते हैं। इसी प्रकार से फिर अगला होता है एक स्पेड होता है, जो कि स्पेड में इस प्रकार का होता है। ये पानी होता है स्पेड, लेकिन इसमें डंठल लगा हुआ रहता है, यह ध्यान रखना है। इसको स्पेड बोला जाता है और इसमें भी वही कार्ड्स होते हैं जो कि डायमंड में बताए गए हैं। इसी प्रकार अगला होता है एक क्लब्स होता है और क्लब्स के अंदर भी इस प्रकार का बना हुआ होता है। ये इसके अंदर भी वही एक 1 एस होता है, 1 किंग होता है, 1 क्वीन होती है, 1 जैक होता है और 2 से 10 तक कार्ड्स होते हैं। इस प्रकार से 13 कार्ड्स होते हैं। अब इसकी भी प्रोबेबिलिटी के कुछ प्रश्न पूछ सकते हैं, जो कि आपको फिर इसका एक और वीडियो अगले वीडियो में बताया जाएगा। प्रिय विद्यार्थियों, आप चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें तथा सब्सक्राइब भी कर लें। और थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।